So, ladies and gentlemen, our speaker for the session, Sri Pushkar Vora sir, has already joined, and I would request sir. Sir, are you there? Yes, Gangwa. Yeah, good morning, sir. Morning. Namaste. Namaste, sir. पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो टॉपिक है आज जो सर डिलीवर करने जा रहे हैं, दैट इज स्पोर्ट्स एंड इवेंट, एंड यू नो वी कैन नॉट फाइंड any other speaker better than Pushkar Vora sir, because he's having a lot of experience in CBSE, and you can understand like a huge population organization he's controlling and conducting the event and sports. So we don't find any person who can deliver a practical experience with you all. So sir, with your permission, shall we start? Yeah, we can start. Yeah, thank you. So once again, good morning, ladies and gentlemen, all the dear participants and panelists for this session. As we are aware that it's day 5 of the E-Khel Pathshala Physical Education and Community Coaching Program. Participants, today we have our first session, and we are happy to welcome, and we are really privileged to have Sri Pushkar Vora sir, a very senior alumni of the great institution LNIP Gwalior, having a lot of experience in the field. So, sir, on behalf of Ministry of Education, on behalf of Ministry of Youth Affairs and Sports, Sport 30 of India, Hello India, and Lakshmi Bai National College of Physical Education, Trivandrum, our principal, sir, Dr. G. Kishore, and on behalf of all the organizing committee member, I, Dr. Narendra Gangwar, would take this privilege and feel honored to welcome you for the session. Sir, thank you, Gangwa. Thank you, Dr. Gangwa. Yes, sir. Sir, before you start, I would like to introduce, because many of the participants, they are new, and so participants, let me allow to introduce our speaker for the session. When we talk about the education qualification, sir has done. Sir has done schooling from Gwalior, Madhya Pradesh, graduation and post-graduation from a prestigious institution, LNIP Gwalior. When we talk about working experience, so sir has served as a physical education teacher for nearly 18 years, 8 years in India and 10 years outside the India. Sir has joined Secretary Academics, CBSE, and he's bearing office from 2001. Sir was promoted to the post of Deputy Director in the year 2012. Sir was again promoted to the post of Joint Secretary Academics in the year 2018. When we talk about other achievements, so Dr. Gangwar, only 29th June ko I have been promoted as director. Oh, sir, we really sorry, and we are congratulate. No, it's okay. We congratulate on behalf of all the participants and from our organizing committee. Sir, really congratulations to you. And sir has attended many national and international level conferences and seminars, and sir have organized many workshops for teachers and head of the institution. So without further much time, we welcome to sir on board. Sir, it's your time. Start, please. Over to you. Yeah, Dr. Gangwar, how many teachers are there now? Sir, as of now, we have around 1,700. 1,700. Yeah, okay, thank you. They are joining, sir. Thank you, Gangwar. Yes. All right. Good morning, everyone. And I'm audible. It's okay? Yes, sir. Clearly, please. Okay. So good morning, everyone, once again. Now, before I start something or talking about sports and events, let me say one line which generally physical education teachers, they hesitate to accept and they do not want to accept rather. That is, we have a kind of a presumption and we have a kind of a pre-note in our mind fixed that we know everything.
and there the learning stops. So before I speak something, try to understand that no matter how many years of experience you may have, how many schools you may have worked, how many athletes you may have produced at national level and even at international level, that is something else. But certainly there will be something that you can always keep learning in your life. There is a line, if you want to learn something, you have to first unlearn something. इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एक पानी का ग्लास है, अगर उस ग्लास में आपको और कुछ डालना है तो आपको पहले थोड़ा पानी उसका खाली करना पड़ेगा. कहने का मतलब कि if you say that I know everything, you are already full, then there is no scope of learning further. But if you always say that yes, I still wish to learn, I still have some place to understand more, then your learning will start better. And remember one thing, आप किसी को कितना भी सुने, there will be at least one word or one line that you will feel that yes, this is new, or maybe the style is different, or maybe the strategy is different, and that can add in your lifestyle, that can add in your future teaching. ये बहुत important है. देखिए, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके खुद के घर के अंदर. If you have a mother, if you have wives, or even when you are cooking at home, आप एक ही डिश को अपने बच्चों के हिसाब से रोज एक नए तरीके से प्रेजेंट करते हैं, एक नए तरीके से ड्रेस करते हैं, and then you make it more interesting and more presentable, so that जिसके सामने और या to whomsoever you are presenting, they understand and they accept that dish in a better way. Cooking जो है वो सबसे अच्छी एक लाइफस्टाइल, एक ऐसी चीज है where you can relate that in the teaching. The way every day you change the menu at home to make food more enjoyable, food more tasty, same way you have to convert your teaching practices also. Same topic, you have to teach in a different ways. Sometimes there are chances that you go with a preparation that yes, today I am going to teach this to the students, and students are not prepared to learn. जैसे कि बच्चा को खाना खिलाने जाओ और बच्चा खाने के लिए तैयार नहीं है, then what method you adopt with the child is you sing a song, you sing a poem, you tell a story, and in between you feed the child. Same is the case with the teaching also. You want to teach a topic, students are not prepared, okay, you make them play, and in between you relate your teaching with that game at different points. And that way you can transact your own lesson, you can transact your own, and you can complete your own task with the teacher, with the students. ये समझना बहुत जरूरी है. This is the thing that is very important in the life of a teacher. You have to be creative all throughout the day, all 24 hours. You have to continue creating a kind of a program inside you, that how you're going to work next for completing the assigned or whatever timetable you have got for that. Unless you have this creativity in you, unless you can experiment yourself, unless you have a kind of a improvisational approach in your teaching, you cannot transact and you cannot reach on the result that you are aiming to reach. Now, when we talk about sports and events, सबसे पहले you have to decide on one thing which is most important, is what are the objectives of organizing a particular program, or what are your objectives out of the program that you want to roll out in the school, whether it is sports, whether it is teaching, or whether it is organizing a competition. You have to be very clear about the objectives. What we talk today in today's term, that is learning outcomes. Your learning outcomes have to be clear in you, that yes, this is the program I want to plan in the school for children, and
this is the thing that I have to achieve after the program. Your objectives have to be well defined. Now, these objectives cannot be just objectives according to your interest or according to your mindset. Before you decide objectives, before you decide learning outcomes, you have to have detailed meeting with the school management, with the school principal, with the staff, with the colleagues. When I say about the staff, staff doesn't mean the teachers in the physical education department. Staff means all the academic teachers also, that how they see the department and what they expect from the department. Also, you have to have a small survey with the parents, with all the stakeholders in the society also, in the neighborhood also. And after discussing with all these people, all these stakeholders, don't forget to discuss these issues with the students' representatives also. You have to have a series of meetings with all these peoples. Maybe a month before or 6 months before you plan any activity, you should start having these sessions with these people, with the society, with the neighborhood, with the parents, with the school principal, management. Why management and principal? Because they are going to fund your program. And unless their objectives are not clear and unless they have a confidence in you, you cannot plan an activity. So planning an activity requires a lot of homework, lot of research study, and lot of paperwork. And then only you can reach on a conclusion that yes, now I am prepared, that this is the thing that I want to achieve in the school. And on the basis of that, your programming will be laid. I hope you are getting me. You cannot sit inside a room and talk to your physical education teachers or maybe by yourself and you can come out and say, I want this program. That will have no desired results. And unless you do not have well laid results in front of you, you cannot present a program in front of your school management. Because ultimately, you need time also from the management. You need funds also from the management. You need infrastructure development for organizing a sports and event from the management. You have to decide on the equipments also on the basis of program. So all these things are interrelated. Your budget will depend on the program, but certainly the program will depend on the objectives of the program. What kind of objectives you want to achieve. For example, a very small example at this point I will talk about is whether you want in your school medals at inter-school level or you want to create a healthy and fit environment in your school, or in other terms, what the terms are going on in present era, that is about the physical literacy, that you want to create an atmosphere about the physical literacy and you are not concerned about winning the medals. So these are the things that you have to work on it. Now, when I say you have to have little research, now this research also shall not depend only on talking. That you go and talk with the parents, you go and talk with the students. Everything has to be documented properly. You have to have some kind of survey, a kind of a questionnaire that you can prepare by yourself with the help of teachers, with the help of management, or with the help of your former teachers, or with the help of your institution from where you have done your physical education degree, or with the help of physical education teachers of neighboring schools, or with the help of physical education teachers who have been your classmates and working in different cities in the country. You can rope in many people in your program. It has to be a
joint effort. It has to be a meaningful effort. Unless you have this kind of approach, your program can never achieve the desired results. Remember one thing, whenever there's an example here, that suppose a person wants to set up a factory or an industry somewhere. Now he decides before setting up the industry that this is the end product I want to achieve out of that, and I want to roll it out in the market. For example, before deciding or setting up an industry, the Royal Enfield company must have decided that this is the motorcycle I want to produce and I want to sell in the market. And then only they will go back and they will decide that now to produce this kind of motorcycle, what all requirements I need. How much is the size of the industry I require? How many parts are required in the motorcycle? What kind of technicians are required in the factory? How much money would be required to create an infrastructure, a big hall, a big belt to run that. Now, end product has been designed and decided well in advance. The graphers must have drawn the motorcycle in advance, and then on the basis of that design or the end product, the rest of the things, the rest of the infrastructure, finance, and everything will depend. Same has to be in the field of sports or before organizing any event. That what is the end result? What do you want? What do you expect children to become? What do you expect children to produce the result? Once these things are well laid, then only you can plan a complete foolproof program. See, I always say that sports is something, or it is a kind of an area. Okay, someone is saying to speak in Hindi also. ये जो चीज है कि भाई हम पहले एक एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करें, तभी हम उसके बारे में काम शुरू करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जब तक आपको एंड प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, आपका टोटल प्रोग्राम, योर फाइनेंस, या कौन कौन से लोग आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, किस टाइप के लोग आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, ये सब चीजें एंड प्रोडक्ट के साथ साथ ये तभी डिपेंड करेगा. तो आपको ये सोचना बहुत जरूरी है कि आप क्या करने जा रहे हैं. Now, when you say that yes, this is the program I am looking for, then you can go and start walking backward. Before that, one more रिसर्च प्रोग्राम की जो मैं बात कर रहा था, आप सबको थोड़ा थोड़ा रिसर्च का एक्सपीरियंस होगा. एज ए सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया होगा कभी ना कभी. आपको उसको रिफ्रेश करना है अपने अंदर. एक छोटा सा क्वेश्चनियर बनाना है, आपको एट रैंडम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी मंथ्स बिफोर यू हैव टू डू दिस वर्क. आपका अगर डॉक्यूमेंटेशन अच्छा है, आपका उसके ऊपर जो बेस है वो अच्छा है, उसके बाद आपका हर प्रोग्राम बी श्योर कि वो सक्सेस होगा, क्योंकि आप अपने अंदर, आपके अंदर क्लैरिटी है कि आप क्या चाह रहे हैं करने के लिए, और तभी स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा. यू कैन नॉट प्ले विद द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन. आप चिल्ड्रन को वो जो एक एक्सपेरिमेंट होता है, उनको एज ए सब्जेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं. आप उनको एक कॉन्क्रीट प्रोग्राम देंगे, तभी वो आपके साथ जुड़ सकेंगे अच्छी तरह. और जब आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, तभी आपको आपके साथ लोग अच्छा कनेक्ट भी कर पाएंगे. एंड अनलेस देयर इज ए वेल गुड कनेक्शन बिटवीन यू एंड द स्टूडेंट्स, बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, you cannot produce a good program.
पेरेंट्स को तभी आप एक्सप्लेन कर पाएंगे कि व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स, आप क्या चाह रहे हैं करना, तभी पेरेंट्स आपके साथ जुड़ पाएंगे. It is a very big teamwork to create a successful program. For example, if there is a Commonwealth Games 22 going on at Birmingham, they must have started this preparation almost 2-3 years before. Minute से minute program भी उन्होंने decide किया होगा. या हमारा अगर फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही है चेन्नई के अंदर आज, तो उसकी प्लानिंग भी बहुत महीनों पहले, बहुत साल पहले स्टार्ट हो गई होगी. तभी यू कैन रोप इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल टू ब्रिंग ऑन सेम प्लेटफॉर्म, सीरीज ऑफ मीटिंग्स, और उसके बाद सबकी सुन के एक कंक्रीट प्रोग्राम पे पहुंचना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना अगर आप कर पाते हैं, अभी तो आपका जितना भी मैंने बात की है ये प्रिपरेशन को लेके बात की है, और जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो जाती है उसको आप, एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं वेटिंग, VETTING. इस वेटिंग का मतलब क्या होता है कि आपका जब एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार हो गया, आप उसको एक बार और चेक करवाएंगे किसी से कि ये मेरा फाइनल डॉक्यूमेंटेशन है. एक्सपर्ट से किसी से आप चेक करवाएंगे. और मैंने कहा हमेशा मैं बोलता भी हूं कि देयर इज ए गुड थिंग इफ यू कीप कनेक्टेड or remain connected with your former lecturers and professors and teachers. If you are well connected and you can remain connected with your former classmates of professional degree courses, जिससे कि आप उन सबसे गाइडेंस ले सकें, जिनके के साथ आप उनके साथ ये डिस्कस कर सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी ये प्रोग्रामिंग सही है बिफोर यू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, तो समझिए कि आपका जो प्रोग्राम है वो 50% सक्सेस हो चुका है. नाउ once your programming is finalized, once your preparation is done, you have done enough research, then you will talk about also funding the program. On the basis of that only, you will ask for the budget from the school management. Yeah, how you can create fund, how you can generate fund, उसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट. अगर आप के ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स है वो क्लियर हैं, तभी ये सब पॉसिबल हो पाएगा. इसके साथ अब एक बार जब आपका प्रोग्राम फाइनल हो गया, तो आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. ना ये सब बातें हो गई प्रिपरेशन की. अब मैं एक बार फिर से बेसिक्स के ऊपर जाऊंगा एंड आई टॉक अबाउट कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे डिसाइड करने हैं आपको. जब ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करने हैं आपको, तो मैंने आपको दो बातें बोली कि आपको पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि वेदर यू आर थिंकिंग अबाउट मेडल्स और यू आर थिंकिंग अबाउट फिजिकल लिटरेसी अमंग द चिल्ड्रन. एंड ये चीजें भी आपको आपके पेरेंट्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करके ही समझ में आ सकता है. अब जो स्कूल में भी आप काम कर रहे हैं, आप जहां पे भी काम कर रहे हैं, वहां की अपनी एक लिमिटेशंस हैं. और जो लिमिटेशंस हैं वो कैसी होती हैं कि आपके स्कूल की प्रीमाइसेस जो है वो छोटी है. आप एक फुटबॉल का प्रोग्राम चाहते हैं, आपके यहाँ फुटबॉल ग्राउंड नहीं है. आप एक हॉकी का प्रोग्राम चाहते हैं, हॉकी का फील्ड नहीं है. या आपके पास वॉलीबॉल कोर्ट है और आप और कोई एक्टिविटी डेवलप करना चाहते हैं. यहाँ पर आपको स्टडी करना पड़ेगा. एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, जहां भी स्कूल में काम करते हैं, आपको पहले ये थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि उस एरिया में किस टाइप के एथलीट्स पास्ट में प्रोड्यूस किए गए हैं. जैसे कि आप लोग जहाँ पे अभी भी काम कर रहे होंगे, आपको पता होगा
कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट से वॉलीबॉल प्लेयर हमेशा निकलते रहे हैं, या हमारे डिस्ट्रिक्ट ने बहुत सारे बॉक्सर्स प्रोड्यूस किए हैं, या हमारे डिस्ट्रिक्ट ने हमेशा जो इंडिया हॉकी टीम है उसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट का हमेशा एक प्लेयर जरूर रहता है। ये थोड़ा सा रिसर्च वर्क आपको करना पड़ेगा, और ये रिसर्च वर्क कैसे होगा, आपको वहां लोगों से बात भी करनी पड़ेगी और उस जगह की हिस्ट्री के बारे में भी जानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस टाइप के प्लेयर्स प्रोड्यूस करता है, तो इट इज ए बेटर आइडिया कि आप उसी टाइप का एक स्पोर्ट्स या इवेंट प्लान करें। देयर इज नो पॉइंट कि आपके यहाँ कभी स्विमिंग का कोई एथलीट निकला ही नहीं है, पास आउट ही नहीं हुआ, स्विमर निकला नहीं, उस जगह से प्रोड्यूस नहीं हुआ, और आप वहां पे एक स्विमिंग का प्रोग्राम की बात करें, या स्विमिंग के प्रोग्राम को फंड करने की बात करें, या हम कहें कि आपके यहाँ से कभी स्प्रिंटर निकला नहीं है और आप स्प्रिंटिंग की एकेडमी के बारे में बात करें, वो एक गलत कंसेप्ट भी होगा और गलत आइडिया भी होगा। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपके यहाँ से डिस्ट्रिक्ट से किस टाइप के प्लेयर्स पहले निकलते रहे, तभी आप उसमें फंड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें लक्ष्मणगढ़ की, राजस्थान की, जहां पे मार्बल्स की माइन है, वहां पे मार्बल्स की फैक्ट्रीज या इंडस्ट्री खड़ी करना एक सही बात है, पर वहां पे किसी और चीज के प्रोडक्ट की बात करना गलत है। सेम इज द केस कि अगर आप कोस्टल रीजन में रह रहे हैं, यू वांट टू सेट अप ए इंडस्ट्री नियर सी कोस्ट, तो वहां पे अच्छा आइडिया होगा कि आप फिशरीज की बात करें, या क्रैब्स की बात करें, या श्रिम्प्स की बात करें। जैसा अगर आप लोग अगर स्पोर्ट्स में थोड़ा सा अंदर जाके देखेंगे कि हमारे जितने भी स्प्रिंटर्स निकलते हैं, वो ज्यादातर जो स्पीड को लेके बात होती है वो कोस्टल रीजन से बाहर आते हैं। या हमारे अगर पावर की बात करें, थ्रोअर्स की बात करें, या एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को लेके बात करें, तो हमारे यहाँ से वो हरियाणा से निकलते हैं, पंजाब से निकलते हैं। एजिलिटी वाले जितने भी गेम है, अगर हम उनकी बात करें तो हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट डोमिनेट करता है। या कैसे गेम्स के भी जो आउटकम्स हैं, या रेसलिंग की बात करें तो वो हरियाणा डोमिनेट करता है, पंजाब डोमिनेट करता है, एंड यस देयर आर सम टाइम्स वेयर नॉर्थ ईस्ट पीपल आर आल्सो देयर। तो आपको ये समझना जरूरी है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से किस टाइप के प्लेयर प्रोड्यूस होते रहे हैं पिछले 20, 30, 40, 50 सालों के अंदर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली यू कैन प्लान योर प्रोग्राम। देखिए, यू आर इन द प्रोफेशन, आप इस प्रोफेशन में आ चुके हैं, यू आर ऑलरेडी अ फिजिकल एजुकेशन टीचर। देयर इज नो हार्म, देयर इज नो पॉइंट इफ यू कीप क्रिबिंग कि मेरे यहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, मेरे यहाँ ये फंड नहीं है, मेरे यहाँ ऐसा नहीं है, या मेरे यहाँ वैसा नहीं है। इस बारे में बात करके यू कैन नॉट कीप सेइंग एंड कीप शोइंग योर हेल्पलेसनेस। आप जितना देर तक अपनी कमियों के बारे में या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों के बारे में बात करते रहेंगे, बी श्योर उतनी ही देर होएगी आपको अपनी रेपुटेशन बिल्ड करने के अंदर। आपको तो ये असेस करना है कि मेरे पास क्या है, कितना अवेलेबल है, और मैं उसके अंदर किस तरीके का ऑप्टिमम या बेस्ट प्रोग्राम डेवलप कर सकता हूं, एक इवेंट डेवलप कर सकता हूं। आई ऑलवेज कोट अ गुड एग्जाम्पल, आई वुड से, मैंने जब एक जगह फिजिकल एजुकेशन टीचर की नौकरी ज्वाइन की, हर स्कूल में इंटर हाउस गेम्स होते हैं, हर स्कूल इंटर हाउस गेम्स ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन मुझे चूंकि वहां के ऑलरेडी आप गए किसी जगह नौकरी में ज्वाइन करने के लिए, आपने नौकरी ज्वाइन की, वहां पे ऑलरेडी देयर आर फिजिकल एजुकेशन टीचर्स। नाउ दे विल नॉट लाइक यू टू क्रिएट ए प्रोग्राम जिससे उनके ऊपर क्वेश्चन हो, बट बिकॉज स्कूल हैज अपॉइंटेड यू, you also have to prove your worth कि yes they have done the right choice, they have appointed a right person। तो जब मुझे ऐसे अपॉइंट किया गया, मैंने वहां पे देखा कि इंटर हाउस गेम्स चल रहे हैं,
Now, I wanted to show my presence in the institution. मैंने कहा मुझे अब नया क्या करना चाहिए. मैंने और कुछ नहीं किया. There are schools and in every schools, अगर आप फुटबॉल की बात कर रहे हैं तो there will be at least 6, 7, 10 students, senior class students, who would always say that they are the best. हर प्लेयर जो और हर स्टूडेंट जो है वो अपने आप को दूसरे से अच्छा शो करने की कोशिश करेगा. So what I did is I identified around 10 students who were good in football. And I called them. I had a meeting with them. I had an interaction with them. And I said, I want to organize a weekend tournament, which will start on Saturday morning, chutti ke din, and Sunday evening it will finish. And instead of 11 aside, we will have 7 aside. तो मैंने उन 10 प्लेयर्स को बोला कि आप अपनी अपनी टीमें बना लीजिए और जब टीमें बन जाएं तो मुझे बता दीजिए. उन 10 प्लेयर ने बहुत प्राउड फील किया कि हम कैप्टन हो गए. जब वो कैप्टन बन गए उसके बाद उन्होंने अपनी अपनी टीम तैयार कर ली. उन्होंने टीम तैयार की. मैंने उनसे कहा कि ठीक है, not to we'll have a tournament, we will have a entry fees also for the tournament. I took permission to use the school infrastructure and premises, and then I asked them कि भाई 70 रुपए per team की entry fees है because 7-a-side tournament है. Now there was 10 teams. I had 700 rupees and I had 2 days to organize the tournament. I started on Saturday morning. Sunday evening I finished, and उसी 700 रुपए में से उनको एक पेन टोकन ऑफ गिफ्ट दे दिया विनिंग टीम को और रनर्स अप टीम को. नाउ स्कूल का कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं हुआ. स्टूडेंट्स के लिए एक नया प्रोग्राम आ गया which was weekend tournament. पेरेंट्स को बता दिया गया था. There were many parents who came to watch their child playing tournament, and we finished the tournaments on league basis in 2 days in a modified way. Now, ultimately, whether it was 7-a-side or 5-a-side or 11-a-side, somewhere you have created a kind of a program for the children, and also skill improvement के लिए तो उन्हें प्लेटफॉर्म मिला ही मिला, चाहे वो 7 खेले या 11 खेले. सर्टेनली स्किल इंप्रूवमेंट तो हुआ. उनका एरिया छोटा हो गया और प्रोग्राम जल्दी हो गया. उनका स्किल इंप्रूवमेंट हुआ. फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन 0 हो गया. और मंडे को मैंने जो विनिंग और रनर्स अप टीम थी उन दोनों की न्यूज लगवा दी न्यूज़पेपर के अंदर. स्कूल का न्यूज़पेपर में न्यूज आ गई. स्कूल की मैनेजमेंट they saw कि हाँ there is a program which was organized by someone, और वो वीकेंड टूर्नामेंट था. मैनेजमेंट को इनवाइट कर लिया प्राइज देने के लिए. You know, this is the way that you have to create a program and show your existence in the society and also among the students and among the parents and in front of the management. Once you create such program and sensitize the children for sports, for exercise, उसके बाद आपको जब आप मैनेजमेंट से फाइनेंस के लिए बोलेंगे या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बोलेंगे या इक्विपमेंट के लिए बोलेंगे, देन मैनेजमेंट विल आल्सो कम फॉरवर्ड कि हाँ ही टॉक्स सब्सटेंस, ये काम की बात कर रहा है और इसने पास्ट में दिखाया है टूर्नामेंट करके कि हाँ टूर्नामेंट कैन बी ऑर्गेनाइज्ड एंड चिल्ड्रन हैव पार्टिसिपेटेड एंड ऑल दीज थिंग्स. This is just a small example to you. आपको भी ऐसे ही छोटे छोटे प्रोग्राम्स तैयार करने चाहिए. आई एम नॉट आस्किंग यू टू थिंक बिग. आपका काम एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर ओलंपिक में मेडल लाने का नहीं है. अगर आप सिर्फ मेडल के बारे में सोच रहे हैं, then that means you are diverting your energy and you are going against the ethics of the program.
You have to think about creating a healthy environment in the school. That should be the top of agenda. आपको ऐसा प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए जिसमें कि आप हर बच्चे को फिटनेस के बारे में सेंसिटाइज कर सकें. आप उनको एक ऐसा प्रोग्राम दे सकें, ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर सकें उनके अंदर कि वो लाइफ लॉन्ग ये सोचें कि एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट, मेडल इज नॉट इंपॉर्टेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप देखिए कि कोरोना के टाइम में everyone in the country, including doctors, including government, सब लोग कह रहे थे कि exercise can help you resist from coronavirus. Healthy body में कोरोना वायरस हिट करने से के लिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है. Now, this is the idea that you should generate and you should create among the children also, that why exercise is important. और आपका जो बेसिक प्रोग्राम है स्कूल के अंदर, you can create inter-house tournament or weekend tournament on the basis of a program based on fitness. अगर आप में से काफी लोग हैं जिनको याद होगा कि देयर वाज ए प्रोग्राम रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्टार का प्रोग्राम था, 1 स्टार, 2 स्टार एंड 3 स्टार. एक प्रोग्राम था NPFP, नेशनल फिजिकल फिटनेस प्रोफिशिएंसी ड्राइव, जिसमें हर बच्चे को या एथलीट को 5 इवेंट करने होते थे. 100 मीटर, 1500 मीटर, हाई जंप, लॉन्ग जंप एंड शॉर्ट पुट. और उस पे वो डकैथलॉन टेबल के हिसाब से उसकी स्कोरिंग करते थे. नाउ एवरी स्कूल शुड हैव दिस काइंड ऑफ ए फिटनेस प्रोग्राम, और वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपको स्टूडेंट की एनुअल रिपोर्ट कार्ड के अंदर कि उसने किस लेवल की फिटनेस अचीव कर ली है. आपके पास 3-4 एज स्लैब होने चाहिए कि एक बिलो 5th होगा, उसके लिए अलग प्रोग्राम होगा, नॉट शॉर्ट पुट, लॉन्ग जंप और हाई जंप. एक होगा 6 to 8, एक होगा 9 to 10 और एक होगा 11 to 12. एंड यू नीड नॉट टू हैव ए काइंड ऑफ ए पैरामीटर, या जो टेबल होती है स्कोरिंग टेबल, वो ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट की या आफर की या इचपर की या इंटरनेशनल लेवल की यूज करनी है. आप उसके लिए भी एक छोटा सा पहले 100% बच्चों को सारे इवेंट्स करा के आप उनकी परफॉर्मेंस देख के अपने स्कूल के लिए खुद एक टेबल क्रिएट कर सकते हैं. थोड़ी मेहनत तो लगेगी, लेकिन योर दिस एफर्ट विल गो अ लॉन्ग वे. बच्चे जिंदगी भर आपको याद रखेंगे कि हाँ, हमारे यहाँ एक टीचर था जो जिसके की सारे ऑब्जेक्टिव्स क्लियर थे और वो हमसे क्या चाहता था उसमें उसको क्लैरिटी थी. डॉक्यूमेंटेशन होगा आपका. ये आप जितना भी प्रोग्राम बनाएंगे, इसके कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स आपके जब क्लियर होंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पोर्ट्स इवेंट को प्लान करने से पहले आपको ऐसा एक फिटनेस को लेके एक प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए. हाउ हेल्दी अ चाइल्ड इज, हाउ फिट अ चाइल्ड इज, किस एज पे और किस स्टेज पे किस बच्चे ने कितनी फिटनेस अचीव कर ली है, वो पता होना चाहिए. यहाँ पे एक पॉइंट जो मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं, जिसके ऊपर स्ट्रेस देता हूं, वो ये है कि आप जब भी कुछ इवेंट प्रोग्राम करें, जब भी कोई स्पोर्ट्स के बारे में प्रोग्राम को बनाएं, आप रिमेंबर वन थिंग, you do everything religiously correct. Religiously correct मतलब होता है कि आप टेक्निकली सही करें, आप थोड़ा करें पर अच्छा करें. आई वॉश ना करें कि आपने इंटर हाउस करना है, एथलेटिक्स करना है, आपने स्कूल के बाद 15 बच्चों को रोका, दौड़ाया धूप में और भेज दिया. नहीं, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं. इंटर हाउस आपको एथलेटिक मीट करनी है, आप 3 महीने पहले आप डेट अनाउंस करिए, उसके बाद आप इवेंट्स की लिस्ट निकालिए, उसके बाद आप एक एंट्री परफॉर्मा निकालिए,
जिसमें बच्चा लिख के देगा कि मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। पेरेंट्स के साइन हो उसमें, जिसमें पेरेंट्स को पता हो कि मेरा बच्चा इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा। उसके बाद उन बच्चों को चेस्ट नंबर दीजिए, बिब नंबर दीजिए, हीट्स बनाइए, उसको डिस्प्ले करिए, नोटिस बोर्ड रखिए स्पोर्ट्स का जहां पे आप हीट्स को डिस्प्ले कर सके। एक बार बच्चों ने अपनी एंट्री दे दी, आपने उनको चेस्ट नंबर दे दिया, वो अनाउंस करिए। उसके बाद बच्चा जो एथलीट जो है वो चेस्ट नंबर के नाम से ही जाना जाए, नाम से ना जाना जाए। नाउ सी व्हाई आई एम टॉकिंग ऑल दीज थिंग्स इज, आई वॉश अलग है कि आपने एक एथलेटिक मीट करा दी, लेकिन जो भी प्रोग्राम आपका स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज आप करते हैं, कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, अल्टीमेटली इट इज योर ड्यूटी टू एजुकेट देम। आप उनको स्पोर्ट्स के थ्रू एजुकेट भी करिए, स्पोर्ट्स के बारे में एजुकेट करिए, इन द सेंस कि बच्चों को समझ में आएगा कि व्हाट इज एंट्री परफॉर्मा, व्हाट इज लिस्ट ऑफ इवेंट, कैसे चेस्ट नंबर मिलता है, एक हीट होती है, एक सेमीफाइनल होता है, एक फाइनल होता है, किस बेस पे, टाइम के बेस पे आप हीट से क्वालिफाई करेंगे सेमीफाइनल के लिए, या कैसे कॉल होगी, कैसे आपका कॉल रूम होगा, कैसे वार्म अप एरिया होगा, कैसे आपका स्टार्ट होगा, कैसे रिजल्ट अनाउंस होगा। ये सब चीजें आपकी टेक्निकली सही होनी चाहिए। आप टाइम लेके करें, आप 4 की जगह 2 प्रोग्राम बनाएं स्कूल के अंदर, लेकिन टेक्निकली सही होने चाहिए। रिमेंबर वन थिंग, इफ चिल्ड्रन आर टॉट प्रॉपरली, अगर उनको सही प्रोग्राम दिया जा रहा है, रिलीजियसली सही कराया जा रहा है, टेक्निकली सही कराया जा रहा है, they will always appreciate you for many years। और उसके बाद अगर वो कहीं गलत होता हुआ देखेंगे तो वो कहेंगे कि हमारे स्कूल में अच्छा होता था, हमारे यहाँ पे सही किया जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम डेड अगेंस्ट द सिस्टम वेयर यू आर जस्ट वॉशिंग ऑफ द हैंड्स, कि आपने अपनी ड्यूटी की और खत्म कर दी। नो, you have to have proper objectives, you have to have learning outcomes, you have to have research, you have to have paperwork, you have to have result announcement। प्रोग्रामिंग अच्छी होनी चाहिए, उस प्रोग्रामिंग में ऑफिशियल्स कौन से आ रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। नाउ बिसाइड्स ऑल दीज थिंग्स, व्हेन आई एम सेइंग ऑफिशियल्स, आपके पास एक ऐसा डाटा होना चाहिए आपके डिपार्टमेंट में कि आपके स्टूडेंट्स के कौन कौन से पेरेंट्स हैं जिन्होंने कभी अपने टाइम में स्टेट या नेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट किया है, या ऐसे भी पेरेंट्स हैं जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन में डिग्री की है बट दे आर प्रेजेंटली हाउसवाइफ्स। व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग ए प्रोग्राम, आउट ऑफ सच डाटा यू रोप इन द पीपल। आप उन पेरेंट्स को इनवाइट करो टू वर्क विद यू एज ए वॉलंटियर, एज ए ऑफिशियल, मेजरमेंट करने के लिए, और काफी चीजें। आपके यहाँ कौन से पेरेंट्स कितना बैकग्राउंड रखते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, आप उनको रोप इन करिए। सी, द मोर यू विल इंटरैक्ट विद द पीपल, द मोर यू विल एक्सप्लेन टू द सोसाइटी, टू द पेरेंट्स अबाउट योरसेल्फ, आपकी रेपुटेशन उसी हिसाब से शाइन करेगी। जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। लेकिन अगर आप सबको बताएंगे, जो दिखता है वही बिकता है। अगर आप सबको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे कि आप क्या करना चाह रहे हैं और क्यों करना चाह रहे हैं, तभी आपकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी, तभी आपकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। यहां पर एक पॉइंट और जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि हाउ यू कैरी योरसेल्फ, दैट मैटर्स अ लॉट। द बेटर यू आर ड्रेस्ड, द मोर पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। वो आपकी सुनना भी चाहेंगे। आप कहें कि नहीं, मेरा काम ग्राउंड में है, मैं चप्पल में ही ठीक हूं, मैं कपड़े भी ऐसे ही पहनूंगा, हमेशा लोअर पहनूंगा, हमेशा टी शर्ट पहनूंगा, these all things are fine, but rise to the occasion। rise to the occasion in the sense कि आप किस प्रोग्राम में जा रहे हैं, कौन सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं,
उसके हिसाब से अपने आप को तैयार करिए, प्रेजेंट करिए पब्लिक में, तभी आपकी रेपुटेशन भी चेंज होगी पब्लिक के अंदर। सी क्रिएटिंग अ और बिकमिंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज नॉट डिफिकल्ट, वो बहुत इजी है। आपने डिग्री कर ली और नॉन अटेंडी होके भी डिग्री कर ली किसी कॉलेज से, प्राइवेट कॉलेज से, कि फीस दी और उसने आपको डिग्री दे दी, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस सोसाइटी में लाना चाहते हैं, देखिए भीड़ बहुत है, भीड़ के अंदर आपको उठना है, भीड़ के अंदर आपको राइज करना है, तभी आप शीशे में अपने आप को जब देखेंगे तो सेटिस्फाई होंगे कि यस आई हैव डिलीवर्ड समथिंग टू द सोसाइटी। अल्टीमेटली यू आर प्लेइंग विद द फ्यूचर सिटीजन्स, और जो वो बच्चा है वो तभी आपको परफॉर्म करेगा जब उसको आपके ऊपर भरोसा होगा। अगर आप बच्चे से कहेंगे जंप, बच्चा तब जंप करेगा जब उसको मालूम है कि ये टीचर मुझे सेव कर सकता है, या ये टीचर मेरे अंदर कुछ खोज रहा है या कुछ मुझे बनाना चाहता है। अदरवाइज दे विल नॉट ओबे योर कमांड। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। टीचिंग इज नॉट इजी। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का जो एक कंसेप्ट है हिंदुस्तान में कि बॉल दे दी, पेड़ के नीचे खड़े हो गए या विसिल बजा दी, कम आउट ऑफ दैट थिंग इफ यू वांट टू बी समथिंग इन सोसाइटी। एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो है या इवेंट आप जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने 2 घंटे खिला दिया या बॉल दे दी और फिर कैप्टन से पूछ लिया कौन अच्छा खेला था, उसके नाम नोट कर लिए, वो रोल नहीं है फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का। ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर, हाउ यू कैन क्रिएट हेल्दी सिटीजन्स फॉर द कंट्री, how you can create fit citizens for the country, how you can create a person who can safeguard his family. ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। How you can link your physical education with the life of the players, with the life of the children, with the future of the children, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, you may say कि I am talking big, I am not talking big. शायद मैंने इन सबको अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, और अगर नहीं किया होता तो मैं इतना शेयर भी नहीं कर पाता। मैंने ये सब चीजें, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स व्हाइल आई वाज वर्किंग इन द स्कूल। मैं सैटरडे संडे को वीकेंड टूर्नामेंट भी करता था और मैं सोसाइटी के लिए भी प्रोग्राम करता था कि कैसे मैं ओपन टूर्नामेंट करूंगा जिसमें स्कूल का कोई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, बाहर के लोग आके पार्टिसिपेट करेंगे। यू हैव टू क्रिएट अ प्लेस फॉर यू इन द सोसाइटी, और उसके लिए आपको अपना प्रोग्राम जो बनाना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आज तक फिटनेस को लेके इंटर हाउस नहीं कराया है, अगर आपने अपने स्कूल में आज तक फिटनेस के नॉर्म्स क्रिएट नहीं किए हैं, स्टैंडर्ड्स क्रिएट नहीं किए हैं, डोंट लुक आउटसाइड द वॉल फर्स्ट। आपके स्कूल की दीवार के अंदर आप क्या कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। I have put so many number of years of service. I have not gone beyond CBSE. नहीं तो मुझे बहुत फेडरेशन से लोग इनवाइट करते हैं कि कम एंड वर्क विद अस, हेल्प अस, असिस्ट अस। मैंने कहा नो, माय प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू वर्क फॉर CBSE. सेम इज द केस विद यू। आप अपने स्कूल के अंदर क्या बेस्ट दे सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और हर बच्चा, हर स्कूल मेडल नहीं जीत सकता, ये आप अपनी मैनेजमेंट को समझाइए। लेकिन हर बच्चा हेल्दी हो सकता है, हर बच्चा एक मिनिमम फिटनेस को अचीव कर सकता है, वो इंपॉर्टेंट। रिमेंबर वन थिंग, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स को भी मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत जगह कि व्हेन गर्ल्स एंड बॉयज दे कम आउटसाइड ऑन द ग्राउंड, दे फोकस और दे प्ले मोर विद द बॉयज, और लड़कियां पेड़ के नीचे खड़े होकर बात करती हैं या ग्रुप बना के बात करती हैं। रिमेंबर वन थिंग, more than the boys, you have to think about the fitness of the girls, health of the girls. जब तक आप लड़कियों की फिटनेस के बारे में
स्कूल को कन्विंस नहीं करेंगे, पेरेंट्स को कन्विंस नहीं करेंगे, तब तक रिमेंबर हमारी फ्यूचर जनरेशन भी हेल्दी नहीं हो सकती। A healthy mother only can bring out a healthy baby. और उसके लिए आपको 11th-12th की लड़कियों के साथ फिटनेस के ऊपर बहुत उनके साथ आपको काम करना चाहिए, if you want future healthy citizens and fit citizens. आपको पेरेंट्स के अंदर मदर्स को बुला के साइंटिफिक प्रूफ के साथ उनको समझाना पड़ेगा कि ये करना है। देखिए, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आके जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप अचीव भी नहीं कर पाएंगे। If you want to be recognized by the society, you have to work beyond your comfort zone, beyond your limits. अगर आप अपने चारों तरफ एक बैरियर लगा देंगे और कहेंगे मैं इसके अंदर काम कर रहा हूं और इतना ही काम करूंगा, तो आपको अचीव भी उतना ही होगा। आपको बहुत बड़े प्रोग्राम के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन उस बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम्स में स्प्लिट करना पड़ेगा आपको, जिससे कि जो अचीवेबल। आपको एक, जैसे हम बच्चे को एक स्पेलिंग सिखाते हैं ऑब्जर्वेशन, तो हम कहेंगे OB ऑब, SER VATION वेशन, तो हम कहेंगे ऑब्जर्वेशन। पहले वो 3 भाग में उसको सिखाएंगे और फिर एक वर्ड उसको बोलने के लिए बोलेंगे। Same is the case in physical education and sports also. For organizing an event also, you have to split your idea into small programs. कि मेरा टारगेट पहले 3 महीने का ये है, जब मैं इतना अचीव कर लूंगा देन मेरा नेक्स्ट जो 3 महीने का टारगेट है वो ये है। आप इमीडिएटली यू कैन नॉट थिंक ऑफ टॉकिंग बिग। एक हवा में ड्रीम बनाने से आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी एवरीथिंग इज नॉट इन राइटिंग। इमेजिन कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम करने के लिए उन्होंने इतने सालों पहले कमेटियां बनाई होंगी, जिन्होंने सीरीज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी, बैठे होंगे, पेपर तैयार किए होंगे, SOP बनाए होंगे, SOP इज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए होंगे कि कौन सा काम कैसे होगा, कौन सा काम कौन करेगा, या ये काम किसके हाथ में जाना चाहिए। ये सब चीजें पहले उन्होंने प्लान की होंगी पेपर में कई साल पहले से, 3-4 साल पहले से, और तब जाके उसको वो एक एग्जीक्यूट कर पाए होंगे। ऐसा नहीं है कि बस किसी को कहा यार तुम कॉमनवेल्थ गेम्स करा लो और उसने अपने 4 दोस्तों को मिलाया और कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए। ऐसे नहीं होता। When I used the term religiously का मतलब यही है कि whether you are creating a program at school level, or you are creating a program for inter-school level, or you are creating a program for district or state or national or international, all programs have equal importance. क्योंकि हर प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो लर्निंग आउटकम्स हैं, वो उसी लेवल के होंगे और अलग अलग भी होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं सब इंटरलिंक्ड भी होंगे। क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे, और किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले एक ही ईंट रखी जाती है। तो अगर आपका स्कूल का छोटा प्रोग्राम है तो एक ईंट जो आप रखोगे स्कूल में, वो भी ईंट मजबूत होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल लेवल पे काम कर रहे हैं तो कुछ भी करवा दो और मैं जब बड़ा कोई प्रोग्राम होगा तब सोचूंगा। वो गलत अप्रोच है। Whenever you plan anything, you have to have concrete planning. बहुत स्ट्रॉन्ग प्लानिंग चाहिए आपको, तभी आप कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और उस प्रोग्राम को करने के लिए आप जितनी बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हैं उतना अच्छा है। आप
अकेला जो आदमी होता है वो उससे अच्छा है कि वो एक टीम क्रिएट करे सो दैट योर टारगेट इज अचीवेबल। क्योंकि जब बहुत सारे लोग मिलते हैं तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं और बहुत सारे लोग एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। रिमेंबर वन थिंग कि आप अकेले अगर काम करेंगे तो you are likely to fail and you cannot look after many things together. जब आप स्कूल में एक प्रोग्राम बना रहे हैं, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम बना रहे हैं, इवेंट्स का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपको दूसरे सब्जेक्ट टीचर्स को भी आपको रोप इन करना चाहिए, आपको पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, नो मैटर हाउ मेनी। भाई पेरेंट्स और कुछ नहीं कर सकते आपके साथ, तो आप लाइक माइंडेड पेरेंट्स को बुलाइए, आप दूसरे पेरेंट्स को एज ए गेस्ट इनवाइट करेंगे, तो आपको पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं पार्किंग में भी कि हम पार्किंग लगवा दें, या पेरेंट्स कुछ आपको हेल्प कर सकते हैं वहां पे जो टक शॉप है, कैंटीन आप क्रिएट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम, उसमें आपके साथ पेरेंट्स हेल्प कर सकते हैं। पेरेंट्स आपके साथ एज ए वॉलंटियर काम कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर पेरेंट्स हैं वो अपना एक वहां पे एक स्टैंड खोल सकते हैं जिसमें वो इंजरी अगर कोई होती है तो उसमें असिस्ट कर सकते हैं। कुछ पेरेंट है जिनके पास अच्छा बड़ा व्हीकल है प्राइवेट, वो उसको एज ए एम्बुलेंस के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन कंपनी में या कहीं काम कर रहे हैं, दे कैन असिस्ट यू इन क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। इस तरीके से आपके साथ बहुत जितने लोग जुड़ते जाएंगे आपका टास्क उतना आसान होता जाएगा, और अल्टीमेटली जितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे उतने लोग आपको जानेंगे, उतने लोग आपको देखेंगे कि हाउ यू आर परफॉर्मिंग, हाउ यू आर प्लानिंग, आपके ऑब्जेक्टिव्स कैसे हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स लाइफ के साथ कैसे अचीव हो रहे हैं, लाइफ के साथ लिंक कैसे हो रहे हैं। एनीथिंग, एक छोटा जो बबूला होता है पानी के अंदर, वो उतना काम नहीं करिए कि वो बबूला निकला और फट गया। आपको ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए जो कि पूरी लाइफ में कनेक्टेड रहे। 20-30 साल के बाद भी बच्चा कभी जो बड़ा हो जाएगा वो अपने बच्चे को बताए कि वी हैड ए टीचर who had everything displayed on the notice board, who created a program for us, and even today I am following that program. ऐसी अप्रोच चाहिए आपको अपने लाइफ में। Then only you can say that I have educated children through physical education. And unless you know how to educate children through physical education, आपकी टीचिंग, आपकी सर्विस इनकम्प्लीट है। आई एम प्राउड टू से कि जहां मैंने फर्स्ट जॉब किया था वो बच्चे आज भी मुझसे कनेक्टेड हैं बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिलीवर्ड। आई एम प्राउड टू से दैट, एंड सेम शुड बी द केस इन एवरी टीचर्स लाइफ। देखिए, अगर आप अच्छा काम करेंगे, अगर आप बच्चों को और पेरेंट्स को एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आप क्यों कर रहे हैं ये, तो 20 साल बाद भी जब बच्चा आपको मार्केट में मिलेगा और वो एक व्यस्क होगा, एक एडल्ट होगा, तब भी आके आपके वो पैर छुएगा और अपने फैमिली को बताएगा कि ये मेरे सर थे, इन्होंने हमें बहुत सिखाया। लेकिन आज के टाइम के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनके पास इंटरनेट की एक्सेस है, एंड दे नो द वर्ल्ड मोर देन यू। अगर आप अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएंगे, अगर आप बच्चे को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, अगर बच्चे को आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे अपना प्रोग्राम, और बच्चे को लगेगा कि ये टाइम वेस्ट है, तो 20 साल बाद जब आपको बच्चा वहां पे अपनी फैमिली के साथ देखेगा, कहेगा यार ये टीचर अच्छा नहीं है, दूसरी तरफ से चलो, नहीं तो मेरे को उसको देखना पड़ेगा। Now, that kind of impact you should have in children's life, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के बिना कुछ अचीव नहीं हो सकता। आप थोड़ा करें, अच्छा करें, अदरवाइज नो।
लेकिन जब आप आए उतरे तो अच्छा करें। और मैंने फिर रिपीट करूंगा, सिर्फ अच्छा करना जानना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू ड्रेस फॉर द ओकेजन, हाउ यू राइज टू द ओकेजन, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू यूज, हाउ मच लैंग्वेज यू यूज, कितना आपको बोलना है वो भी पता होना चाहिए, किस पिच में आपको बात करनी है वो पता होना चाहिए, किस टाइप की लैंग्वेज यूज करनी है वो पता होना चाहिए। I am sure you all must have seen some or other time European leagues, फुटबॉल की, स्पेनिश लीग। आपने देखा होगा कोचेस जो साइड में भी खड़े होते हैं, दे आर इन टाई, दे आर इन सूट, दे आर इन हैट। हमारे यहाँ कोचेस, आई एम सॉरी टू से, वो कहते हैं नहीं ट्रैक सूट का लोअर ठीक है, जूती चप्पल ठीक है। दैट्स ए रॉन्ग अप्रोच इन लाइफ। हीरो वर्शिप एक चीज होती है, जैसा बच्चा आपको देखेंगे वो अपने अंदर वो ही अडॉप्ट भी करेंगे। आपको, यू आर क्रिएटिंग फ्यूचर सिटीजन्स इन द सोसाइटी, फॉर द नेशन। तो आपको हर चीज का ध्यान रखना है, बहुत छोटी छोटी चीज का ध्यान रखना है। कैसे एक मदर जो है जब खाना बनाती है तो कितना मसाला किस क्वांटिटी में जाना चाहिए डिश के अंदर, और जब डिश सर्व होनी चाहिए तो उसके ऊपर डेकोरेशन कैसी होनी चाहिए, क्या उसके ऊपर हरा धनिया भी डालना है, थोड़ा सा पनीर ग्रेड करके डालना है, या थोड़ी सी क्रीम से कुछ बना के रखना है वहां पे। शी नोज हाउ टू प्रेजेंट एवरीथिंग, और हर चीज का एक रेशियो होता है एक डिश बनाने के अंदर। सेम इज द काइंड ऑफ अ प्रिंसिपल दैट यू हैव टू अप्लाई व्हाइल टीचिंग ऑन द ग्राउंड ऑल्सो। कितना क्या सिखाना है, कहां तक बच्चे को लेके जाना है, हाउ मच ऑफ लोड द चाइल्ड कैन टेक, किसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है बच्चे की, दीज थिंग्स यू हैव टू आइडेंटिफाई। और इन सब चीजों के बीच में से ही यू हैव टू हैव टैलेंट हंट ऑल्सो, कि कौन सा बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, आपको वो भी एक रिकॉर्ड रखना है। सिर्फ याद नहीं रखना कि उस बच्चे ने बहुत अच्छा खेला, आपको आने के बाद एक डॉक्यूमेंटेशन भी करना है एक रजिस्टर के अंदर, कि यस ऑन दिस डेट आई फाउंड दिस चाइल्ड दैट परफॉर्म्ड वेरी वेल, व्हाई दैट चाइल्ड परफॉर्म्ड वेरी वेल, और या उसका आपको कौन सा एक पार्ट अच्छा लगा, कि वेदर ही वाज अ गुड गोलकीपर, और ही वाज अ गुड डिफेंडर, और ही हैड अ गुड किकिंग एबिलिटी, और ही न्यू हाउ टू डॉज प्रॉपरली। ये पॉइंट भी आपको वहां पे मेंशन करना चाहिए। या ये फ्रंट फुट पे क्रिकेट अच्छा खेलता है, या ये बॉलिंग अच्छी करता है, ये स्लिप पे फील्डिंग अच्छी कर सकता है, ये कैच अच्छा कर सकता है, ये भागता अच्छा है बॉल के पीछे। These kind of notes, small notes, you have to maintain in your record, and on the basis of that you have to have talent hunt also. कहने का मतलब जो आपका स्पोर्ट्स है और इवेंट है स्कूल के अंदर, वो बहुत ज्यादा एजुकेटिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होना चाहिए, और बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक भी होना चाहिए। कि बैकग्राउंड क्या है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं, आप कहां पहुंचना चाह रहे हैं, आप लोड कितना देना चाह रहे हैं, आप किस किस को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, और साथ में ही आप आगे क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम से, वो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसमें से टैलेंट हंट भी करूंगा इस प्रोग्राम में से। तो ये सब चीजों को मिला के ही आप एक अच्छा प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। Remember one thing, you are very important for everything. You are not just a teacher. You are a creator. You can create the future in the students. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि they can be good at high jump, या they have a very good cycling style that can assist them in a long jump. तो आपको ये सब चीजें छोटी छोटी स्किल्स की जो है, आप उनके टेस्टिंग के लिए भी आपको एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो। जैसे
आप बास्केटबॉल टूर्नामेंट नहीं कर सकते, आपके यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, लेकिन आपके पास स्कूल की दीवार है, आप उसमें बास्केटबॉल का रिंग टांग सकते हैं और आप अपने स्कूल में शूटिंग का टूर्नामेंट कर सकते हैं। सिर्फ 2 पॉइंटर और 3 पॉइंटर शूट का भी आप एक टूर्नामेंट कर सकते हैं। This is the way you can create a program for yourself, for the school. I am sure कि जितनी भी बातें मैं आपसे कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं आप उसको समझ पा रहे हैं कि आपने आज तक क्या किया, या आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि यस, आज मैं इसमें से क्या कुछ कर सकता हूं आगे जाके अपने स्कूल के अंदर। I am not talking about you to bring out an athlete who will become an Olympian. No. ये बहुत समझने की बात है. Don't aim for the medal at school level, that I will focus only on medal. No. You must focus on creating an environment for exercise, creating a healthy lifestyle, and creating a healthy citizen for life. Citizen for life. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो है जिंदगी भर आपके प्रोग्राम को फॉलो कर सके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स, ये जब भी प्लानिंग होगी आपकी, आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट ईयर की प्रोग्रामिंग के लिए आपको इस साल से काम करना पड़ेगा. जब जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका लीन पीरियड आ जाता है, स्पोर्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं और थोड़ा सा आपका बोर्ड एग्जाम, प्रैक्टिकल बोर्ड एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. आप उस समय अपना होमवर्क करना स्टार्ट करिए नेक्स्ट ईयर के स्पोर्ट्स और इवेंट्स के प्रोग्राम के लिए. यू कैन नॉट जस्ट सिट आइडियल कि भाई मेरे पास अभी 3 महीने आराम के हैं. आराम के टाइम नहीं है. In sports, there is no term like rest. If you agree with me, जो term हम use करते हैं, वो use करते हैं active rest. हम rest use नहीं करते word. I hope you know. तो आपको भी वो 3 महीने active rest पे रहना है, ना कि rest पे रहना है. तभी जाके आप next year की planning कर पाएंगे, documentation कर पाएंगे, budgeting कर पाएंगे, लोगों को इन्वॉल्व कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे. और हर साल का आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे को इस साल क्या अचीव करना है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस साल के, इस सेशन के. दोज ऑब्जेक्टिव्स हैव टू बी वेरी क्लियर बिफोर यू प्लान एनी इवेंट और स्पोर्ट्स इवेंट. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप you may have liked a few things which you may bring it in your life from now on. However, make sure and be sure whatever you do, do it correctly, do it religiously, and you should have clarity inside you that what do you want to do. But what do you want to do, that will be based on your research, and for research you have to have interaction and a research questionnaire with parents, students, management, principal, colleagues, and everyone. Then only you can create a good program or sports program, or you can create a good event, or you can host a good event. With these words, Dr. Gangwar, I am done. Thank you so much, and I hope you have liked the session. Anything is there, any way, if I can be of any help to you individually or otherwise, you can always approach me. I think most of you know me very well, and you can always reach me out if you need any kind of guidance, and if you feel I am fit to give you the guidance. Thank you everyone, and have a good day. Thank you so much, sir, for a wonderful session and making a lot of things clear about and giving a lot of ideas to conduct sports and event, how the teachers can be creative. Thank you so much, sir. And now I would like to all the participants, if you have any doubts, any question, you can drop in the question answer section. We'll take up. Sir, with your permission, Yes. I'd like to take few questions from participants. Please.
ना एक क्वेश्चन जो बहुत लोग बोलते हैं, अभी भी किसी ने लिखा है कि जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए क्या करें। ना उसी मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगा कि 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा खाना खाने में इंटरेस्टेड नहीं है, सिर्फ खेल में इंटरेस्टेड है, लेकिन माँ उसको खेल खेल में खिलाई देती है खाना। और आप भी एज ए फादर, अगर आपका बच्चे को खाना खिलाना है तो आप कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेंगे खाना खिलाने का। देयर योर क्रिएटिविटी मैटर्स। सेम इज द केस इन स्कूल ऑल्सो। बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, आपको उनकी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, आपको उनके बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे और कहीं ना कहीं उनको अननोइंगली और नोइंगली उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, मे बी पहले वॉलंटियर की तरह या पहले असिस्टेंट की तरह, और फिर बाद में उनको रोप इन करना पड़ेगा। लेकिन आई फील कि आज के टाइम में जब एवरीवन इज सो फ्रेंडली विद द इंटरनेट, एवरीबडी नोज व्हाई एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट इन द लाइफ। आज के टाइम में अब मेरे ख्याल से इतनी मुश्किल नहीं है बच्चों को ग्राउंड पे खिलाना। मेरे ख्याल से हर गली के अंदर, हर रोड पे thousands and hundreds of फिटनेस सेंटर खुल चुके हैं, जिम्स खुल चुके हैं, तो जनरल पब्लिक जो है बहुत अवेयर है इन चीजों के लिए। और कोरोना के बाद जब सिर्फ एक्सरसाइज की बात की गई है, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है बच्चों को ग्राउंड पे लाना। सर थैंक यू। सर इसी से मिलता हुआ एक क्वेश्चन है कि जो स्कूल समितियां हैं या जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज हैं, उनको कैसे खेलों के लिए जागरूक करें? देखिए, पहले मैंने ये बीच में भी एक बार बोला अभी कि पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा ना कि आप कितना कर सकते हैं। देखिए, आप जब डर्बी में जाते हैं, या डर्बी आपने अगर देखी होगी, तो आप उसी घोड़े पे पैसा लगाते हैं जो घोड़े के से आपको उम्मीद होगी ये जीतेगा। आप एक कमजोर घोड़े पे पैसा नहीं लगा सकते। मैनेजमेंट हैज टू आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने काम से, अपनी एक्टिविटी से, अपनी प्लानिंग से, अपने डॉक्यूमेंटेशन से। मैनेजमेंट को आपको ये समझाना पड़ेगा कि आप क्या चाह रहे हैं और किसके लिए चाह रहे हैं और क्यों चाह रहे हैं। धीरे धीरे चेंज आएगा, पर आपको अपनी वर्थ बतानी पड़ेगी कि मैं सोना हूं, मैं गोल्ड हूं, तभी आपकी वो वैल्यू ज्यादा लगेगी। अगर आप अपने आप को लोहा बताएंगे तो आपकी वैल्यू नहीं लगेगी। आपको एक्स्ट्रा माइल तो चलना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसी कोई मैनेजमेंट नहीं है जो अपने स्कूल का नाम सोसाइटी में नहीं चाहती, और एक स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है विच गिव्स माइलेज टू द स्कूल, टू द इंस्टीट्यूशन। तो ये आपकी वर्थ के ऊपर है कि आप अपने को कैसे प्रेजेंट करेंगे, तभी मैनेजमेंट आपके ऊपर भी दांव लगाएगी। थैंक यू सर। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ पार्टिसिपेंट अंगद कुमार। सर हाउ टू मोटिवेट गर्ल्स एंड पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स? देखो, गर्ल्स को आपको या तो आप काउंसलिंग कर सकें गर्ल्स को, अगर आपके यहाँ पे इतना माहौल ठीक है। अदरवाइज थ्रू योर स्पेशल एजुकेटर और थ्रू स्कूल का जो काउंसलर है, या आप अपने पास का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहां से आप गायनेकोलॉजिस्ट को बुला के या डाइटिशियन को वहां से बुला के गर्ल्स के लिए स्पेसिफिक आप लेक्चर्स रखवा सकते हैं, और लेट देम एक्सप्लेन कि हाउ हेल्थ कैन गिव अ लाइफ टू द गर्ल्स, और वहां से आप एक प्रोग्राम की तैयारी करवा सकते हैं। अदरवाइज जब तक लड़कियों को समझ में नहीं आएगा कि क्यों करना है, तब तक बहुत मुश्किल है। और उसके लिए आप ये गायनेकोलॉजिस्ट को और डाइटिशियन को पास के हॉस्पिटल से इन्वॉल्व कर सकते हैं लेक्चर देने के लिए। तभी आपकी, देखिए, आपको तरीका तो ढूंढना पड़ेगा, और तरीका यही है कि आप मूवीज दिखाइए, लड़कियों की अचीवमेंट्स की मूवीज दिखाइए जो ओलंपिक्स में है, या उन्होंने कैसे कम बैक किया है इंजरी के बाद, या कैसे डिलीवरी के बाद भी उन्होंने अचीव किया है। ये सब चीजें आपको अडॉप्ट करनी पड़ेंगी लाइफ में। थैंक यू सर। सर एक क्वेश्चन है पार्टिसिपेंट काजल, शी इज वर्किंग इन सम गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। क्वेश्चन इज लाइक हाउ टू encourage maximum participation of students in government schools?
देखो गवर्नमेंट स्कूल में तो क्या है, एक प्रोग्रामिंग तो गवर्नमेंट की तरफ से भी होती ही है, लेकिन फिर वही बात है कि आप उनको कितना, देखिए उन्हीं की बच्चों की भाषा में बात करिए। पहले तो आप ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करिए, ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करिए जो उन्हें समझ में ही ना आए। पहले उन्हें एक्सप्लेन करिए, मे बी 4 महीने लग जाए, 6 महीने लग जाए, आप उनको बताते रहिए कि क्यों करना है, हम क्या चाह रहे हैं आपसे। उसके बाद आप छोटे छोटे गेम्स, आप क्लासरूम गेम से शुरू करिए। आप क्लासरूम में कोई एक्टिविटी सिखाइए, आप चेयर पे बैठ के कोई सिटिंग योगा कराइए उन्हें। थोड़ा सा उनको एक फ्लेवर डेवलप करने की जरूरत है, उसके बाद सब कुछ इजी हो जाता है। आप उनको पहले वॉक पे ही ले जाइए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। पर पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, हारना ऐसे काम नहीं चलेगा। Dr. Gangwar, I think most of the questions I have worked out. Yeah, sir, just one very small question I'll take. किसी पार्टिसिपेंट ने पूछा है, सतनजीव झा, सीबीएसई गेम पॉसिबल है? सीबीएसई गेम पे 100% प्लानिंग हो चुकी है। एक्सपेक्ट समथिंग सून, होगा, जरूर होगा। Right? Okay, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, Dr. sir. Gangwar. So just give me 1 minute, sir. So, dear participants, as you are replying very positive in the chat box, and sir, बहुत सारे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं पार्टिसिपेंट से कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला सेशन था और बहुत सारे प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंसेस सर ने शेयर किए। सर, थैंक यू सो मच ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री of Sports and Government of India, Ministry of Education, Sport Authority of India, Khelo India, and Sai LNCP Trivandrum. On behalf of our principal, Dr. G. Kishore sir, and on my personal behalf, I am really happy and congratulate you and say thanks for delivering such a great session, sir. Thank you so much, sir. Thank you, Dr. Gangwar. Yeah, thank you, sir. And thank you, everyone. Thank you. Yeah, thank you so much. Dear participant, thank you so much for attending our first session of day 5th E-Khel Pathshala. I would like to request all the participants, we'll have another session at 3 to 4:30 p.m. today, that is on role of yoga in sports performance. And we'll have a very senior faculty from Sai LNCP will be delivering the session, role of yoga in sports performance. Dear participants, your poll is already launched. Please take part to give feedback about the session. That will help us to prepare this program better and better in coming days. Thank you, and we'll see you in the next session. Any query, any question, if you have, please drop a mail. And one more announcement. Some of the few new registered participants, you will be receiving communication very soon to take part in ongoing 8th batch of E-Khel Pathshala. Thank you so much. Have a nice day.